दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन जिसको हम अभी तक सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. सो information is in fact contrary to the entropy. Information is the measure of order in which the managers are built. So no organization can be built without an information. This information precisely tells what to do and when to do. And from where this information is coming, this is a very important thing. By the way, इसको अगर आप फैलाएं इस पूरे के पूरे phenomena को, so you will realize that this universe is not built through entropy only. एक लम्हे के लिए अगर बिग बैंग को सोचिए, एक लम्हे के लिए बिग बैंग को सोचिए जिसने बहुत से लोगों को पजल्ड किया, तो यू विल रियलाइज दैट एट द टाइम, एट द वेरी टाइम, जीरो टाइम पॉइंट, व्हेन दिस स्मॉल पॉइंट जिसको हमने कहा हाईली कंडेंस्ड एनर्जी एंड मैटर, व्हेन इट ब्लास्ट इटसेल्फ, व्हाट शुड हैपन? इट शुड स्प्रेड यूनिफॉर्मली एवरीवेयर. ऐसे नहीं होना चाहिए. You are thinking of this universe currently जैसे मौजूद है, जिसके अंदर हवा भी मौजूद है, जिसके पानी भी मौजूद है, पार्टिकल्स को कहीं ना कहीं कोई डायमेंशन, किसी न किसी एक पार्टिकल इस डायमेंशन को जाना चाह रहा था, तो इधर इसको कोई हर्डल आ गई तो उसने इसकी बजाय अपनी पोजीशन चेंज कर ली. वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम व्हेन देयर वाज नथिंग. दिस इज स्पेस. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, रिएक्शन होगा if there is an action. If you moving, you will keep moving in the absence of anything. If you are stopped, you cannot move without any cause. किसी cause के बगैर आप move नहीं कर सकते. So in that situation, when this happened, which is called a big bang, at this time point जिसको हम zero time कह रहे हैं, मकसद सिर्फ आप लोगों को एक छोटे से रिडल की तरफ लाना था, जो कि आप लोगों को समझने में एक दिक्कत. This is the time zero point where nothing is present, everything. That means अगर कोई पार्टिकल दो निकलेंगे, अब हम ज्यादा इसको डिफिकल्ट नहीं करते, दो पार्टिकल हैं, ठीक है, देयर आर टू पार्टिकल्स व्हिच आर हैपनिंग, सो साइमल्टेनियसली इन द एब्सेंस ऑफ नो हर्डल, दिस मस्ट गो टू अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, टू सेम डिस्टेंस, बिकॉज दोनों को एक ही जैसी फोर्स के साथ धकेला गया. दिस इज कॉल्ड ब्रस्ट. कोई डायमेंशनल फोर्स नहीं थी जो इस वक्त जो कह रही है कि आपने इधर जा, इतना जाना, इसको उधर जाना. मेरी अब आपको समझ आई? सो एज पर एंट्रोपी, देयर इज नथिंग इन द आउटर एटमॉस्फेयर which can which can disturb the uniform distribution of matter. So if the matter is not distributed uniformly, that means there were forces at that time जो कि stop कर रही थी या favor कर रही थी. This is how the stars has been made, how the galaxies has been made. My problem with everything, not problem है, but just basically आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ इस एक पॉइंट पर जिसको मैं information कहता हूँ. This is very important to build thing. So highly organized universe, highly organized things which are present in place, at least at this point जिसको हम T0 कह रहे हैं, there was a plan present. This is the hype of everything जिसको हम कंसीडर करना नहीं चाहते, और हम ये समझते हैं कि शायद इसको नजरअंदाज करके हम आगे की तरफ जा सकते हैं. ठीक है? At this time there was a plan that present कि when big bang will happen, यहाँ पर गैलेक्सीज बनेगी और यहाँ पर गैलेक्सीज नहीं बनेगी. सारा इससे फिलोसॉफिकल थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इंफॉर्मेशन इज द कोर टू बिल्ड प्रोटीन्स. Without information, you cannot build protein. And this information in living cells are coming through, for example, we say RNA से आती हैं, and we say that this RNA is coming from a DNA, and we say this DNA has come from, we don't know. This is the silence. ठीक है? ऐसे ही है ना? पहला DNA कैसे बना? We don't know. How this was so organized? It was purely by chance. ऐसे ही है? This is the conundrum which in fact somehow hamper everything जो हमारी understanding है. जब हम इस information को इस अंदाज में देखते हैं तो it seems it was just a chance event, and of course एक chance event हो गया, उस chance event को repeat करने के लिए simultaneously there are further chances. Anyway, so in living organisms information is inherent in three-dimensional world. Please focus on this word
कि ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर ये इनहेरिट है। मैं आपको बताऊं, इंफॉर्मेशन हर लेवल के अंदर एग्जिस्ट करती है। डीएनए के लेवल पे एग्जिस्ट की, आरएनए के लेवल पे इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। आरएनए से राइबोसोम से जब प्रोटीन बनी है, इट एग्जिस्ट इवन एट दैट टाइम व्हेन इट इज अ मैच्योर प्रोटीन, इट इज स्प्लाइसिंग डाउन, इट इज अनदर टाइप ऑफ which exists at that time. When this is a pure peptide, polypeptide, it is organized in 3-dimensional form. It is another type of information which is present at that time. So you see, without information there is nothing. Without information there is nothing. इसको हम कहेंगे इल्म के बगैर दुनिया में कुछ नहीं है। इल्म है तो दुनिया एग्जिस्ट करती है, जहालत है तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। एंट्रोपी इज ए सिंपल सिनोनिम ऑफ इग्नोरेंस। मैं इसको सिंपल यही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं आगे की तरफ नहीं जाता। ओके, ठीक है जी। ईच प्रोटीन इज अ यूनिक, हैज अ यूनिक शेप, और दिस इज an interesting example of information, सो डेलिकेट थिंग, और हमने इसको इतना सुपरफिशियली लेके जाते हैं ये बन जाता है। ऐसे थोड़ी बन जाता है, देयर इज हाईली प्लान जो कि किसी जगह पर चल रहा है प्लान, ठीक है। ईच प्रोटीन इज हैज अ यूनिक शेप, और दिस यूनिक शेप एनेबल इट टू मेक सिलेक्टिव इंटरेक्शन। ऐसा नहीं है कि हर प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ कभी भी मिल जाता है। अगर तो सिर्फ इतनी सी बात होती है ना कि केमिकल है और केमिकल से रिएक्ट करता है तो मामला ही खत्म हो जाता है। हर चीज दूसरी चीज के अंदर मिक्सअप होती है और एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन बना हुआ होता है आपके पास। ना आपके पास सेल होते, ना आपको, एवरीथिंग वाज अ सूप, बट इट इज नॉट अ सूप। फ्रॉम सूप से हमने कहा ये सारा कुछ बना। एग्जाम्पल आर हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज, दीज आर टू एंजाइम्स। आप इसको थोड़ा फोकस करें तो आपको लगेगा दोनों का मोर और लेस काम एक ही है। हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज बोथ आर एंजाइम that use glucose as a substrate, and of course that use carbohydrates as a substrate. But the problem is that hexokinase, glucokinase can only cleave glucose, where hexokinase can go for galactose and mannose. If you ask me, of course glucose भी एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और galactose भी more or less इतना ही। So who decides what molecule is a substrate? This is an information, precise information, जो कि इन प्रोटीन्स के अंदर मौजूद है, इनकी इंटरेक्शन की वजह से इनके अंदर मौजूद है। You cannot overlook this information, ठीक है। These enzymes can catalyze in a specific way with highly specificity, जो कि शायद किसी और एंजाइम के अंदर। ओके, लेट्स डिस्कस अगेन अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर सिंपल मॉलिक्यूल जिनको हम अमाइनो एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। दिस इज द वर्ड अमाइनो एसिटिक एसिड मीन दिस मॉलिक्यूल contains simultaneously an amino group and an acid group, carboxyl group. These both or all amino acids contain this. This is called amino acidic acid. The simplest of amino acids are the glycine amino acid, जिसको हम amino acidic acid भी कहते हैं। ओके जी, so every amino acid contain a carboxyl group, every amino acid contain an amino group. Of course there is a side chain जिसको हम functional group भी कहते हैं, मौजूद होती है। the carbon जिसके अंदर ये bound है इसको हम कहते हैं alpha carbon. I already spoke last time that alpha carbon is the carbon which is bound to 4 different types of groups जिनको हम बात करें। अमाइनो एसिड्स को हम एम्फोटेरिक भी कहते हैं मॉलिक्यूल बिकॉज दे बोथ बिहेव एज एन एसिड एंड बेस, सो साइमल्टेनियसली दे आर एसिड एंड बेस। स्विट्राइन हम पहले बात कर चुके हैं, कैसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर। सो देयर आर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, देयर आर नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। वी से स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड सेल के अंदर मौजूद है 20 टाइप ऑफ। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर अमाइनो एसिड्स व्हिच आर chemically changed form of the amino acid. For example, if you say proline, there is an hydroxyproline. If you say for example lysine, there is an acetyl lysine. So this acetyl group has slightly changed the overall chemistry of the amino acid. That is why it is called non-standard amino acid. हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे later on. 19 out of 20 standard amino acids have the same general structure except one, जिसके अंदर side chain has unusually attach itself to the amino group. That is why the R group and the amino group has taken the form of a cycle. Ring बन गया. So you could see it here. This is the alpha carbon, मेरा cursor उस पर मौजूद है. Hydrogen is bound to one end, carboxyl group is bound to another end, amino group is bound to another end. इस कार्बन के साथ एक R group attached था जो कि आपको blue box में नजर आ रहा है. But this R has made
a ring formation of this amino group. This is not originally a ring formation, but it is just the interaction of amino group and this R group which has made this product. That is what is called a proline, which is a special type of amino acid which is called this is an exception. So this is a secondary structure, if you could say it like this. This is a secondary structure which has originated from amino and the R group and which made this proline. That is why proline is a rigid molecule. Proline is a रिजिड मॉलिक्यूल, क्योंकि आप इसको अल्फा कार्बन के गिर्द रोटेट नहीं कर सकते। गलत बताया। एवरी अमीनो एसिड इज एन एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट वन। ठीक है, वो उसकी तरफ अभी हम आते हैं। वो एक कौन सा है जो कि सिमेट्रिक है और एसिमेट्रिक नहीं है। ऑल द अमीनो एसिड्स आर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बिकॉज दे ऑल बाउंड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। जहां जब तक कोई भी अल्फा कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक। दैट मींस all are different from each other. One amino acid which is not asymmetric is called glycine. Symmetric because it is not attached to 4 different molecules. This is the alpha carbon, आपको नजर आ रहा होगा alpha carbon. This is the carboxyl group. This is the amino group, and you see up and down there are 2 hydrogen atom bound. This hydrogen atom is normally present in all amino acids. This is the R side chain of glycine. So glycine is the simplest amino acid. This is the special type of amino acid, and that is why it is a symmetric carbon. It's not an asymmetric carbon. इसमें दो चीजें एक जैसी मौजूद हैं. That is why it is called. Because normally carbon is asymmetric, alpha carbon is asymmetric. This brings to another phenomena which is called stereoisomers. हम उसकी every carbon which is bound to 4 different molecules, which is called a chiral carbon, and chiral carbon means it could be present in different. अब आप यूं समझिए एक ही मॉलिक्यूल आप उसको केमिकली एक ही जैसा लिखते हैं, उसकी 2 डिफरेंट इंप्लीकेशंस हैं। वही इंफॉर्मेशन किसी और तरह अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है। दिस इज अनदर हाउ हु इज डिसाइडिंग दैट थिंग। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर स्टीरियोआइसोमर्स जिनको हम सुपर इम्पोजेबल एक दूसरे के ऊपर कहते हैं। मैं उसकी तरफ आने जा रहा हूं। पहले आप लोगों को एक समय के लिए बता दूं कि हम कार्बन को नेम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 4 कार्बन, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, अगर 4 कार्बन मौजूद हैं, ठीक है, तो आप उनको नेम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। लेट्स सपोज दिस इज द 4 कार्बन और दिस इज द अल्फा कार्बन जिसके साथ 4 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। मैं इसको इस तरह कहता हूं, दिस इज द अल्फा कार्बन। तो सेकंड कार्बन जो कि अल्फा कार्बन के साथ बाउंड है, बाय द वे दिस इज, मैं अगर सिंपली लिख दूं NH4 ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी, NH3, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन लिख दूं, और इधर मैं क्या लिखूंगा भला बताइएगा। इम्तिहान है, आप लोग सुन रहे हैं। बॉन्ड पूरे हो गए। इधर क्या COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, इट्स अ कार्बोक्सिल ग्रुप on it. So now this is the second one is the beta carbon, and this one is the gamma carbon, and this is the epsilon carbon. Okay. This is how we normally write this thing. So as a result of this stereo phenomena, carbons are either L type or R type. Look at this picture. You could see an alanine here. Both L and R forms are visible here. Although both of these stereoisomers are superimposable mirror images of each other, but they differ in the spatial arrangements of different elements which are present in this molecule. As a result, one of the molecule have ability to bend the light towards the left, and the other has the ability to bend the light towards the R. In general words, we say them these are optical isomers. Multiple forms exist करती है, but most general forms are 2 types जिनको हम कहते हैं optical isomers, just because they are visibly different from each other, और इसलिए क्योंकि वो लाइट को बेंड करते हैं दाएं तरफ या बाएं तरफ। इनको हम L type and R type amino acids कहते हैं। Normally in living worlds only the L type amino acids are present जिनके अंदर glyceraldehyde is the somehow the fundamental molecule, basic molecule, which has given us this convention, this nomenclature. This is the glyceraldehyde.
जिसको हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त। तो इफ यू लुक एट इट एट 3 डायमेंशनल फॉर्म, आपको ऐसा नजर आएगा कि कार्बन अल्फा कार्बन सेंटर में, तो जो इट्स अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जो कि हम अक्सर कहते हैं ये ऐसे करके मेरे पास अगर कोई बन जाए तो मैं बना के भी आपको दिखा दूं, इट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है, दिस इज अल्फा कार्बन, इसके ऊपर एक और चीज भी नजर आ रही है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। if you draw it on paper in 2 dimensional form, this is the 3 dimensional world जिसके अंदर हम नजर आ रहे हैं। प्रॉब्लम 3 dimensional world का ये है कि हम हर चीज 3 dimensional फॉर्म में देख नहीं सकते। बट इफ यू जस्ट गो फॉर 2 dimensional वर्ल्ड विच इज ऑन पेपर, तो आपको ये ऐसा नजर आएगा। हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि तीसरा एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता है पेपर के अंदर। Well, anyways, in 2 dimensional form you could write it like this. So this is the center which is called alpha carbon। आपको you could see कि एक साइड पे आपको एसिटिक एसिड, एक साइड को अल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है। दिस इज द ग्रीन कलर अल्डिहाइड ग्रुप, एंड दिस इज द CH2OH ग्रुप जिसको हम अल्कोहल ग्रुप भी कहते हैं, वो नजर आ रहा है। दिस इज अगेन OH ग्रुप एंड H। दिस इज द 2 dimensional form। If you write it in the similar fashion, अगर हम एलानिन को ले तो दिस इज द एलानिन, जिसको हम इसी फैशन के अंदर लिखेंगे तो आपको नजर आएगा। अगर आप एक चीज को नोट करें तो आपको नजर आएगा कि इन दोनों में हाइड्रोजन ग्लिसरॉल्डिहाइड में, और इन दोनों में राइट साइड पे मौजूद है, जबकि फेनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे मौजूद है। बाय द वे, इनिशियली इसको हम एस और आर फॉर्म्स के नाम से याद करते थे। एस स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर विच इज अ लैटिन वर्ड विच मींस लेफ्ट, एंड आर फॉर रेक्टस विच इज अ लैटिन वर्ड विच कॉल्ड राइट। अब हम इसको एल एंड डी फॉर्म्स कहते हैं। दिस इज द सेम, सो एल एंड एस फॉर्म्स आर इक्वल। सो दिस इज द एल एलानिन which tells the amino group is present on the left side. Chirality has had a profound impact on the structure and functional properties of biomolecule. For example, कि राइट हैंडेड हेलिस जो कि आपको नजर आता है प्रोटीन्स के अंदर, जिसको हम अल्फा हेलिस कहते हैं, इट इज जस्ट बिकॉज वी हैव एल अमीनो एसिड्स। पॉलीपेप्टाइड्स synthesized in laboratory from both D and L amino acid, they do not form helix. In addition, because enzymes are chiral molecule, आप ये एक बात तो समझ लीजिए, आपके जितने एंजाइम हैं वो सारे चिरल मॉलिक्यूल हैं। ये अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं ओनली अगर उनकी तरह का ही एनेंटियोमर मौजूद होगा। अगर फॉर एग्जांपल एंजाइम डी फॉर्म का है और सबस्ट्रेट एल फॉर्म का है तो दे डू नॉट बाइंड विद ईच अदर। अब एग्जांपल है प्रोटीजेज एंजाइम्स, दे डिग्रेड प्रोटीन, हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड्स, दे कैन नॉट डिग्रेड आर्टिफिशियल पॉलीपेप्टाइड। क्यों? It is just because the artificial polypeptides are made up of D amino acids, whereas our enzymes are made up of L amino acids. So L cannot degrade D form. क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिए और फिर मुझे बताइए इसका आंसर। आप लोगों के सोचने के लिए मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। Certain bacterial species have outer layers composed of polymers made up of D amino acids. So सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया के अंदर डी अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी आउटर लेयर के अंदर। इम्यून सिस्टम सेल्स whose task is to attack and destroy foreign cells cannot destroy these bacteria. Suggest a reason of this phenomena. Why? Why? Because enzymes are in L form. The enzymes जिनको प्रोटीएजेस एंजाइम्स कह रहे हैं, they are in L form. हो रहा क्योंकि हमारे एंजाइम बिल्ड नहीं है इसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, there is an information of bacteria requires specific enzyme called racemases to interconvert D and L amino acids. Mammals do not use this D amino acids. So compounds that block racemases do not affect mammals and show promise as antibiotics. This is a very important information. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स बनाएंगे इस रेसीमेजेस के अगेंस्ट तो बैक्टीरिया मर जाएगा, इंसान को कुछ नहीं होगा।